We have lost the ground for Indian values, ethos, and, and instincts, what the civilization has been teaching to the entire world, especially with regard to management of resources and care of the mother earth. So much so that it can be said that modernism does lead to development, but development not necessarily leads to modernism. On this note, I welcome you all again for today's talk on the topic Pandit Deen Dayal Upadhyay and Viksit Bharat 2047. As for the culture and traditions of Banaras Hindu University, we do not begin with any program without paying floral tribute and homage to the founder of Banaras Hindu University, Pandit Madan Mohan Malviya ji, and as well as Pandit Deen Dayal Upadhyay ji. So I request the distinguished dignitaries to please come forward and pay floral tribute to Pandit Madan Mohan Malviya ji and Pandit Deen Dayal Upadhyay ji. Please give a round of applause. I also request the dignitaries to please light the lamp. Thank you, dignitaries. भारतीय सभ्यता में अतिथियों को देवों तुल्य माना गया है और हम भारतीय अपने अतिथियों का स्वागत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करती हूँ स्वागत करने से पहले मैं हमारे बीएचयू का कुलदीप
ये नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। ये है विद्या के भव्य मंदिर, ये सर्व सृष्टि की राजधानी। आती है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। ये हरिश्चंद्र के नहीं पर ये सर्व शिक्षा की राजधानी। वेद ईश्वर की सत्यवाणी पढ़े जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। व्यास जी ने रचे यहीं पर ये सब विद्या की राजधानी। मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यहीं फले फूले बुद्ध शंकर। ये राज ऋषियों की राजधानी। करुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भजा हो कविता का क्यों न आकर, ये ज्ञान विद्या की राजधानी। कला अर्थशास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, ये की राजधानी। मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। प्रकट हुई है अमीर होकर, ये कर्मवीरों की राजधानी। अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगी कि वे मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया आगे बढ़कर आए और कुछ एवं साथ ही में हमारे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी माननीय रामाशीष जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री विनय कुमार सिंह जी का पुष्पगुच्छ एवं
अनुरोध करूंगी डॉक्टर बालालक्ष्मी सर जी को कि वे आए और माननीय रामाशीष जी को हम लोग एवं मूवमेंट देकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। I now invite our fellow research scholar, Divyanshu, to please come forward on the dais and give a formal welcome to the distinguished guest. वो कुछ हो गया सर, विवेक किधर गया? कोई बात नहीं, लेकिन जो ऐसे कर Good afternoon, one and all. I welcome you all to this special lecture on Deen Dayal Upadhyay and Viksit Bharat 2047. I would like to introduce our guest, Shri Ramashish ji. Ramashish ji, आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। वर्तमान में प्रज्ञा प्रवाह के केंद्रीय टोली के सदस्य हैं। आपका केंद्र काशी है। आप पूर्व में अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। Our chief guest and speaker for the day is Shri Binay Kumar Singh. Shri Binay Kumar Singh is the director of Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation. He is also an author, researcher, columnist, and panelist for various broadcast media channels. He is known to provide a realist perspective on issues such as national security and policies. His analysis and understanding of national security have shaped many credible works in various linguistics, including Hindi and Telugu. He has authored 5 books. He is actively engaged in empowering the youth for policy research. I welcome you, sir, and we all are looking forward to your lecture. Thank you. माइक कहीं से लेके बोल सकते हैं। हाँ, माइक कर रहा है, नहीं कर रहा है तो पोडियम पे आप आ जाइए। ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ, शायद सर जो पीछे लोग बैठे थोड़ा सा आगे आ जाए तो जो पीछे बैठे हैं इधर आ जाइए। ऐसे दशरथ भी आगे इधर किसकी आ जाइए। साइड में जो कुर्सियाँ इस पर आ जाइए। दशरथ जी, आपके साथ पीछे जितने हैं सबको रेजिस्टर करने आ जाइए। आप डॉक्टर हो तो यहाँ बैठ उधर बैठिए। दशरथ जी यहाँ बैठिए ना। May I now request the chief speaker of today's talk, Shri Binay Kumar Singh ji, to please come forward, or maybe as you wish, sir, you may please address the gathering. बहुत बहुत धन्यवाद। आज PHU में पहले आया हूँ, लेकिन दूसरे वाले कैंपस मिर्जापुर वाला कैंपस तो पिछले साल आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस यूनिवर्सिटी में एक घटना होती है जहाँ सब लोग आते हैं। मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन आज आप लोगों के बीच हूँ। आई एम फीलिंग वेरी एनलाइटेंड एंड ग्रेट। दीनदयाल उपाध्याय चेयर के चेयरपर्सन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामाशीष सिंह जी,
आज के कार्यक्रम में आए हुए शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं सभी गणमान्य लोग, एक तो दीनदयाल उपाध्याय चेयर है जिसने ऑर्गेनाइज किया है, और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर आज बोलना है, और एक ऐसे विषय पे बोलना है जो 60 साल पहले बोली गई। दीनदयाल जी का एक रैंडम ऐसे बंबई के एक सेमिनार में जाना हुआ था, और बहुत प्लानिंग करके उन्होंने नहीं कहा था। वो हमेशा भाषण देते थे, भाषण में उनके नयापन रहता था, और उसी में जो उन्होंने 3 दिन के कार्यक्रम में कहा, तो वो कंपाइल होकर के एकात्म मानव दर्शन बना। एकात्म मानव दर्शन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो जाता है। लेकिन एक बात समझने की है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्म मानव दर्शन का ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, उसको मैच नहीं करता है उस भाव को। दूसरा जो उन्होंने कहा, एकात्म मानव दर्शन के 60 साल पूरे हो गए, उस 60 साल के पूरे होने पे भारत की राजनीति 60 वर्ष आगे चली गई। जिस पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, जिस पार्टी के महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, वो पार्टी आज सत्ता में है, सरकार में है। तो ये एक ढूंढने का, तोड़ लेने का भी विषय हो जाता है कि जो एकात्म मानव दर्शन के पीछे की जो सोच थी, आज गवर्नेंस मॉडल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितना रिफ्लेक्ट हो रही है। और थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव में टेक्नोलॉजी बदल गई, कई चीजें बदल गई, पानी बहुत बह गया उसके बाद में। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में 60 साल पुरानी एक कही हुई बात या एक सोच कितनी रेलेवेंस रखती है। पहली बात तो ये कि दीनदयाल जी ये मानते थे, और उनके विचार को मानने वाले जो उनके समर्थक हैं, वैचारिक समर्थक हैं, वो भी ये मानते हैं कि दीनदयाल जी ने कोई नई बात नहीं कही। तो he did propounded a theory, he expounded a theory। तो एक्सपाउंड और प्रोपाउंड का अंतर यही है कि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, एक बात जो हमारे संस्कार में, हमारे चेतना में थी, उसी को उन्होंने सजा करके एक तरीके से कहा जो एक पर्सपेक्टिव बताती है, जो एक पर्सपेक्टिव दिखाती है। और वो इतनी प्रभावी ढंग से कही गई कि उसको, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने उस कार्यक्रम के बाद ही तुरंत उसको अपना मैनिफेस्टो मान लिया, या उसको अपना वैचारिक धरातल मान लिया। उसमें बात कही क्या गई? बात बहुत अलग नहीं कही गई थी, बात बहुत अलग नहीं कही गई थी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के बाद भारत के साथ कई देश आजाद हुए, कई देश अभी हाल फिलहाल तक आजाद हुए। तो दुनिया के कई देशों ने जो एक लाइन ली, तो हमने वेस्ट का लाइन लिया। वेस्ट हमारे कॉलोनाइजर्स थे, तो उस नाते कई लोगों ने लिया। कई देशों में छटपटाहट उस कॉलोनियल माइंड से निकलने के लिए उस समय ही थी, उस क्षण ही थी जब वो देश आजाद हुए। कई देशों ने दुनिया की तय किया कि कॉलोनियल लाइन लेंथ को ही लेकर के चले, तो अलग अलग तरह के रास्ते पर अलग अलग देश चले। भारत में इसको लेकर कंफ्यूजन था। भारत आजाद हुआ तो जो सत्ताधीश थे वो सोशलिस्ट फॉर्मेट लेकर के चलना चाहते थे, जिसमें हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वैचारिक अधिष्ठान का कोई महत्व नहीं था, अपना संस्कृति बोध का कोई स्थान नहीं था, बल्कि अपने संस्कृति के प्रति हीनता का भाव था। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शंस थे। ये कॉन्ट्रडिक्शंस आप देखेंगे तो गांधी और नेहरू में भी दिखता है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस आप देखेंगे तो आगे चल करके दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू में भी दिखता है। उन कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण ही एक अलग वैचारिक धरातल पर एक अलग संगठन शुरू हुआ, जो उस
माइंडसेट को या उस कॉलोनियल हैंगओवर वाले एक डेवलपमेंट मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करता था, या देश किस रास्ते चले उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता था। दीनदयाल जी ने जो बात कही उसमें दो बातें, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एक ही लाइन में आप उस एकात्म मानव दर्शन को जो समझना चाहेंगे तो ये है कि जो देश है उसकी एक चिति होती है। चिति चित्त से बनता है, चित्त यानी मन। तो व्यक्ति के नाते जैसे आपका एक मन होता है, वैसे समाज का एक मानस होता है, वैसे देश का एक मानस बनता है। और देश का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको चित्त कहेंगे, जो देश का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको चिति कहेंगे। और चिति को कोई निर्जीव इकाई नहीं मानते, चिति को बहुत वाइब्रेंट, बहुत लाइव एंटिटी मानते हैं दीनदयाल जी। तो चिति के अनुरूप देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश का गवर्नेंस मॉडल, पाथवे टू प्रोग्रेस, आगे की दिशा उस चिति के हिसाब से हो, यही एक लाइन में पूरी बात कहते हैं दीनदयाल। उसमें वो एकात्मता की बात करते हैं कि डेवलपमेंट मॉडल उस चिति के साथ एकात्म हो, देश की जो पॉलिटिक्स है उस चिति के साथ एकात्म हो। तो ये चिति क्या है? और हमारा देश जो अगर चिति इसकी है तो ये चिति बाकी देशों से अलग कैसे है? आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति, समष्टि, परमेष्टि, कुल मिला जुला करके फिर उसी बात पर आते हैं कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें उसको परिवार मानना, ग्लोबल फैमिली मानना, पूरी वसुधा को कुटुंब मानना, और राजनीति को एक बड़े कैनवास पे देखना। और जब बड़े कैनवास पे देखते हैं तब आप अगर सामाजिक जीवन में होते हैं और जब दीनदयाल जी के प्रिज्म से या एकात्म मानव दर्शन के प्रिज्म से आप देखने का जब प्रयास करते हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन को, तो आपका कैनवास बड़ा होता है। और जब कैनवास बड़ा होता है तो वेस्ट का जो मॉडल है वो राइट्स बेस्ड है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू दिस, राइट टू दैट, जेंडर राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। जब आपका कैनवास बड़ा होता है तो राइट के बियॉन्ड आप जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है। राइट टू एक्सप्रेशन आप कहते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेशन आता है। राइट टू लिव जब आप कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव आता है। और यही अंतर होता है जो पश्चिम का जो मानस है, जो राइट बेस्ड उनका जो ह्यूमनिज्म की थियरी है, उससे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इसलिए अलग है क्योंकि पूरा ये 360 डिग्री एक व्यू पॉइंट देता है देश और दुनिया को देखने का। ये 360 डिग्री व्यू पॉइंट है। तो आप ऐसे समझिए कि दुनिया में आज दो बड़े संकट, और उन दो बड़े संकटों में नाम अगर लें तो एक ग्लोबल वार्मिंग है जिसे लगता है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग सबको मालूम है कि भाई ओजोन लेयर है, डिप्लीट हो रहा है, ब्लैक होल बढ़ जाएगा, धरती का तापमान बढ़ जाएगा उसके कारण। और ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी कि धरती से जीव खत्म हो जाएंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट है वो है सोशल वार्मिंग। और मैं बात कह रहा हूं कि ये दो ही समस्याएं हैं जिससे दुनिया जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग और सोशल वार्मिंग। सोशल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही सोशल वार्मिंग में इतनी गर्माहट बढ़ रही है, इतनी कटुता बढ़ रही है समाज में, आपस में। कहीं भाषा का फॉल्ट लाइन है, कहीं धर्म का फॉल्ट लाइन है, कहीं जाति का फॉल्ट लाइन है, कहीं ऊंच नीच का फॉल्ट लाइन है, कहीं काले गोरे का फॉल्ट लाइन है। जहां फॉल्ट लाइन नहीं है वहां फॉल्ट लाइन क्रिएट किए जा रहे हैं, क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। उन फॉल्ट लाइन की क्रिएशन के लिए लॉजिक्स गढ़े जा रहे हैं। तो दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग और सोशल वार्मिंग, इन दोनों का उपाय, इन दोनों से निकलने का मार्ग एकात्म मानव दर्शन है। तो देश की चिति के साथ एकात्मता, दुनिया के साथ एकात्मता,
प्रकृति के साथ एकात्मता, परिवार संस्था के साथ एकात्मता, ऐसी एकात्मताओं के साथ हम जब देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से भी निकलने का रास्ता सूझता है और सोशल वार्मिंग से भी निकलने का रास्ता सूझता है। अब दोनों में आप कहेंगे कि कैसे रास्ता? मान लीजिए कि अभी आप मुझे मिले, पहली बार मिले, हमने हाथ मिलाया, आपसे कहा कि भाई साहब कैसे हैं? भाई तो आप मेरे रास्ते नहीं, अभी अभी मिले, लेकिन ये भाई का बोध कहां से आया? आप मिली, मैंने आपको नमस्ते किया, बहन जी आप कैसी हैं? ये बहन का बोध कैसे आया? अभी तो मिले, हमें आपको जानता नहीं, आप बहन कैसे मिले? कोई बुजुर्ग महिला मिली तो उनको माता जी नमस्ते, ये कहां से बोध आया? ये बोध आता है भारत, दुनिया में कई जगह परिवार संस्थान है, लेकिन भारत के संस्कारों में, संस्कृति में परिवार संस्था नाम का एक संस्था है। परिवार संस्था बनता कैसे? दो स्त्री पुरुष है, दोनों का विवाह हो गया, तो एक संबंध का जन्म हुआ, पति और पत्नी का, बच्चे हुए, तो दो और संबंधों का जन्म हुआ, माता पिता का, बेटा बेटी का, उन बच्चों के बीच में भाई बहन का संबंध हुआ। तो ऐसे इंटर रिलेशंस, इंट्रा रिलेशंस, इवेंकुलर रिलेशन, चाचा चाची, ताया ताई, मौसा मौसी, ऐसे कई सारे संबंधों का एक व्यवसाय, एक संबंध बोल प्रकट होता है। उसी विवाह संस्था से निकले हुए संबंध को आगे जाकर के प्रकृति से जोड़ते हैं। आप लाख फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए नियम बना लीजिए, पेड़ों का काटना गैर कानूनी कर लीजिए, लेकिन जब तक प्रकृति से आपका वो जुड़ाव नहीं होगा, जब तक नदी को आप हृदय से नहीं मानेंगे, तब तक उसमें कूड़ा डालना बंद नहीं करेंगे। नदी को जब तक आप एक वाटर बॉडी के रूप में देखेंगे, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण गलत नहीं, लेकिन बिना इमोशनल कोशियंट का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो आपको उसके प्रति संरक्षण का भाव नहीं आएगा, आपको पेड़ के प्रति प्रेम नहीं जाएगा। और ये जो ओजोन लेयर, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे किसी समय से। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के प्रति आपको भाव नहीं जाएगा। ये जो भाव जगता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से निकलने का रास्ता सूझता है, ये निकलता है परिवार से। दूसरा, अमेरिका में एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रॉबर्ट पुटनम नाम है। रॉबर्ट पुटनम बड़े चर्चा में हैं पिछले 2-3 दशकों से, और इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया, और अमेरिका को क्रिटिसाइज किया है तो अमेरिका में विलेन की तरह नहीं, अमेरिका के हीरो हैं, अमेरिका उनको सेलिब्रेट करता है, और उन्होंने जो कहा है अमेरिका के बारे में, उसको अमेरिका बहुत गौर से और संजीदगी से ले रहा। उन्होंने अमेरिका के बारे में कई किताबें लिखी, और उसमें एक जो शब्द बार बार यूज करते हैं, सोशल कैपिटल, पाउली मलोन करते हैं उनकी किताबें, सोशल कैपिटल। तो जब पुटनम सोशल कैपिटल कहते हैं तो इसमें दो गौर करने वाली बातें। एक, सामाजिक पूंजी को पूंजी मानना। तो पूंजी तो पैसा होता है, पूंजी तो मतलब जिसका मॉनेटरी वैल्यू है वो होता है पूंजी। सामाजिक पूंजी, पूंजी कैसे होगी? तो उसको डिफाइन करते हैं कि जिस देश में सामाजिक पूंजी ज्यादा होती है, सोशल कैपिटल ज्यादा होता है, उसमें सोशल सिक्योरिटी का खर्चा कम होता है। जिस देश में सोशल कैपिटल कम होता है, उसमें सोशल सिक्योरिटी का खर्चा ज्यादा होता है। और अमेरिका के बारे में कहते हैं कि अमेरिका इज बैंकरप्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल कैपिटल। यहाँ सोशल कैपिटल नेगेटिव है, इसीलिए पर कैपिटा सोशल सिक्योरिटी का खर्चा ज्यादा है, पर कैपिटा पुलिस फोर्स ज्यादा है, क्राइम का रेट ज्यादा है। उन्होंने जो कहा तो ये कहते, तो उसको अमेरिका ने बड़ी गंभीरता से लिया। अमेरिका ने अपने गवर्नेंस के मॉडल में, अपने कॉर्पोरेट्स के मॉडल में, जहां एआई को मोनार्क मानते थे, आईक्यू को मोनार्क मानते थे, जहां इंटेलिजेंस कोशिएंट को ही सबसे अल्टीमेट चीज मानते थे, आपको तनख्वाह आपकी कितनी होगी, आप कितने बड़े फर्म में किस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे या करेंगी, इस बात से तय होता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। तब जाकर के वहां एमक्यू आता है, मोरल पोस्टिंग, उससे भी बात नहीं बनती है। तो फिर आगे इमोशनल पोस्टिंग, फिर उससे भी आगे जाकर के एसपीक्यू, सोशल, ये स्पिरिचुअल पोस्टिंग की बात अमेरिका में हो रही है। घूम करके भारत आते हैं, जिस इमोशनल, स्पिरिचुअल, मोरल कोशियंट की बात और सोशल कैपिटल की बात अमेरिका कर रहा है और रॉबर्ट पुटनम कर रहे हैं, वो भारत के परिवार संस्था से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट है।
पश्चिम के विद्वान, पश्चिम के स्कॉलर्स इतनी बेईमानी तो कर ही जाते हैं कि उसका सोर्स जो है उसको छुपा जाते हैं और ऐसा बताते हैं जैसे सोशल कैपिटल उनका मौलिक कोई सोच हो, उनका मौलिक कोई इन्वेंशन हो। कुल मिलाजुला कर कहानी ये है कि भारत में सोशल कैपिटल का क्षरण हो रहा है। वृद्धाश्रम बन रहे हैं तो खुश मत होइए कि सरकार वृद्धाश्रम बना रही है। ये आपके सामाजिक क्षरण का प्रमाण है कि आपके यहाँ भी वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है। परिवार की इकाई अगर छोटी हो रही है, 5.5 अभी फैमिली मेंबर्स पर फैमिली ऑन एन एवरेज है, तो ये चिंता का विषय है। अगर आंगन में ज्वाइंट फैमिलीज के दीवारों की संख्या बढ़ रही है तो ये चिंता का विषय है और यहाँ ये प्रमाण है कि आपका सोशल कैपिटल घट रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के उस देश जहां से आइडियोलॉजीज इंपोर्ट होती हैं, जहां से फॉल्ट लाइंस फर्दरिंग के फॉर्मूलाज इंपोर्ट होते हैं, वहां के थिंक टैंक से, वहां की यूनिवर्सिटी से, वह देश इतने सचेत हैं कि अपनी सामाजिक पूंजी बना रहे हैं और हमारे यहाँ हमारा परिवार संस्था हमारी सामाजिक पूंजी को निशाना बनाएगा। अभी आजकल ओफिज्म है बड़ा चर्चा, इसके पहले मार्क्सिज्म था। बंदूक से काम नहीं चला तो अब नॉन गन वाले फॉर्मेट में ओफिज्म आया है। मैं दोनों का इसलिए आते हुए जिक्र कर रहा हूं कि पहले में भी मार्क्सिज्म में भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस को टारगेट किया। आप पढ़ने आते हैं, अपना करियर बनाने आते हैं, एक भाव लेकर के आते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, एक स्थान प्राप्त करेंगे, देश के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और विधि की तरह आपके ऊपर किसी संस्था की नजर होती है जिनको जंगल में ले जाना है, इनको मार्क्सिस्ट बनाना है। उसी तरीके से जब गर्मी बढ़ी और जब स्टेट का आर्ट ऑफ सर्विलांस बढ़ा, जब उनकी आइडियोलॉजी एक्सपोज हुई और नए कार्टून्स नहीं मिल रहे हैं, तो नए नए फॉर्मेट्स में वो आ रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, जैसे ओफिज्म है। तो ओफिज्म का एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक टीवी चैनल पे, टीवी चैनल पे नहीं, एक यूट्यूब चैनल पे एक यूट्यूबर, बड़ा चर्चित यूट्यूबर है, उसने कहा कि किसी को कि आपके माता पिता व्यक्तिगत क्षणों में हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट करके क्या उसको पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहेंगे? रणवीर अलाहाबादी नाम था, उसने वल्गर तरीके से कहा, मैं थोड़ा उसको सभ्य भाषा में कह रहा हूं। उसने जो कहा ये बात, तो अमेरिका का एक ओक शो है, उसने वर्बेटिम उसको कोट किया। ये उसका मौलिक सोच नहीं था कि अच्छा गलती हो गया, बह गया होगा, तो उसने वहां से उसको कोट किया। जो अमेरिका का शो है उसमें एक महिला है और एक अंडर एज बच्चे से ये सवाल पूछ रही है। इसको आप समझिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय था, केस मुकदमे भी हुए थे। अब आप समझिए कि परिवार संस्था में एक एंटिटी है मां और एक एंटिटी है बेटे। तो मां और बेटे के संबंध में ओफिज्म आपको ये कह रहा है कि अरे ये मां तो है और आप बेटे तो हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक और संबंध है आपके और आपकी मां के बीच में, कि आप नर और मादा भी तो हैं। तो ये शिफ्ट ऑफ व्यू पॉइंट बहुत छोटी सी बात है कि मां को एक दृष्टि ये भी हो सकती है कि ये मां तो है लेकिन मादा भी तो है, तो बेटा अपनी मां को मादा की दृष्टि से। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स यंग माइंड्स के साथ हो रहे हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये फॉरेन आइडियोलॉजीज हैं, आपके दिमाग को पोल्यूट करते हैं, जैसे मार्क्सिज्म नहीं। मार्क्सिज्म सबसे ताजा फेल उदाहरण है। इतना हिप्नोटिक था कि यंग माइंड्स को लगता था कि क्रांति क्रांति क्रांति, इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है एकदम समतामूलक समाज बनाने का, सब भेदभाव मिटाने का, गरीबी अमीरी सब बराबर करने का। 4-5 दशकों में जब देखेंगे तो कुल मिलाजुला के आउटपुट क्या है, और ये वेस्ट के ह्यूमनिज्म से ही निकला हुआ है। ये मार्क्सिज्म उसी कंसेप्ट से निकला है। आउटपुट क्या है?
एक व्यक्ति नहीं है जिसको आप उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये मार्क्सिज्म का प्रोडक्ट है और ये रोल मॉडल है समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए। एक गांव को नहीं कह सकते, एक देश को नहीं कह सकते कि ये रोल मॉडल है और इस विचारधारा पे हमने एक मॉडल क्रिएट किया है और दुनिया ऐसी होनी चाहिए या व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, गांव ऐसा होना चाहिए। हाँ, आपने छोड़ा है एक लेगेसी, इतनी बड़ी लेगेसी, मार की, काट की, ब्लडशेड की, मर्डर्स की, कि उसका इतिहास लिखने चलेंगे तो 100 साल लगेगा। दुनिया का एक हिस्सा खत्म हो गया इस आइडियोलॉजी से। भारत जैसा देश, मैं इसलिए कहता हूं कि 2047 की ओर हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, केवल ट्रिलियन इकोनॉमी के ही टारगेट को लेकर के नहीं। एक ऐसी फॉरेन इंपोर्टेड आइडियोलॉजी जिससे कई देश अभी तक जूझ रहे हैं, उससे निकलने का मार्ग उनको नहीं सूझ रहा है। और हमने मार्च 26 का डेडलाइन दे दिया कि इस आइडियोलॉजी से हम मुक्त हो जाएगा। मैं फिर उस बात पे आता हूं कि मार्क्सिज्म म्यूटेट हो रहा है। सीपीआई माओइस्ट जब बना 2004 में, तो उसको 9th कांग्रेस ऑफ सीपीआई माओइस्ट कहते हैं। पहले दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, एमसीसी और पीडब्ल्यूजी, दोनों का मर्जर हो गया। तो जब मर्जर हुआ तो उसको 9th कांग्रेस ऑफ सीपीआई माओइस्ट बोलते। उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, कोबाल्ट गांधी और कई लोग थे उसमें जो मिलकर के डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। जब स्टील डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी बातें लिखी हुई हैं। एक 13th चैप्टर है उसका, अर्बन पर्सपेक्टिव, और 2007 में उस 13th चैप्टर को एक फुल फ्लेज डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया गया। उसका नाम था यूपीयूए। सब नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सब क्लासिफाइड है। तो अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज, तो अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज आप पढ़ेंगे, 60 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। तो उसमें ये कहा जाता है कि 2004 और 2007 में, आज लगभग 21 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं, कि माओवादियों को कार्य नहीं मिल रहा है। क्यों? आइडियोलॉजी के प्रति रुचि नहीं है। कैंपसेस में अब वो अट्रैक्शन नहीं है उस आइडियोलॉजी के प्रति। स्टेट का आर्ट ऑफ सर्वेलेंस बढ़ा है, तो आने वाले समय में जंगल वॉरफेयर कम होगा या खत्म हो जाएगा। स्टेट का पेनिट्रेशन, उनका दखल बढ़ेगा जंगलों में। तब क्या करेंगे? तब टैक्टिकल यूनिटी करेंगे, तब लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स में आएंगे। तो लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क वाले ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में हम लोग आएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि देश भर में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मूवमेंट, जो आपको लग रहे हो कि थोड़ा फ्लेवर एक्सट्रीम लेफ्ट का है, लेकिन संविधान हाथ में है, तिरंगा हाथ में है। फ्लेवर एक्सट्रीम लेफ्ट का है, लेकिन कलेवर उसका देखेंगे या कवर देखेंगे तो बहुत लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में वो काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये समस्या बढ़ने वाली है इंस्टीट्यूशंस के कैंपसेस में, कि आपको नए सिरे से, नए फॉर्मेट में रिझाने, लुभाने और टारगेट करने का आपको प्रयास किया जा रहा है या किया जाएगा। आने वाले 5 साल 10 साल में ये थोड़ा और मुखर होकर के आएगा। अलग अलग आइडियाज और आइडियोलॉजीज के रूप में ये निखर के भी आएगा। मैं दिल्ली में एक थिंक टैंक में काम करता हूं। दुनिया भर में थिंक टैंक्स ऑपरेट होती हैं और कई देश ऐसे हैं जो अपने को कहते हैं कि हम दुनिया के ए लीग कंट्री हैं। दुनिया का कोई पैरामीटर नहीं है, किसी ने घोषित नहीं किया है कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं। वो अपने को कहता है कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं। हमारा जो राष्ट्रपति है वो दुनिया का फर्स्ट सिटीजन है और उसकी पत्नी जो है फर्स्ट वुमन। तो ऐसे देशों में थिंक टैंक्स का बड़ा रोल रहता है। थिंक टैंक्स कई प्रकार से फंडेड होती हैं, सरकार की मशीनरी से फंडेड होती हैं, कॉर्पोरेट से फंडेड होती हैं। और थिंक टैंक्स का काम क्या होता है?
कई काम होते हैं, कई अलग अलग डायमेंशंस में काम होते हैं। एक काम ये भी होता है कि हमारी हेजेमनी बनी रहे, इसके लिए दुनिया वॉर में रहे, देशों के अंदर वॉर्स रहे, देश अपने पड़ोसी के साथ वॉर में रहे। तो वॉर में रहने से क्या फायदा क्या होगा? तो दो फायदे होंगे। एक कि आप वॉर में हैं तो उनकी हेजेमनी को चैलेंज नहीं करते हैं। आप वॉर में हैं तो हथियार चाहिए तो हथियार बेचते रहिए। तो वॉर में आप हैं तो डबल बेनिफिट होता है। एक तो आप उनको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, और दूसरा आपको जो चाहिए उसको सेल्स हमारे पास ही है, तो हमारा इकोनॉमिक बूस्ट होता है। ये थिंक टैंक के फॉर्मुलेशन पे आप देखेंगे तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश विक्टिम रहे। भारत में भारत पाकिस्तान का बंटवारा, मैं आपसे पूछूं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़ा विलेन किसको मानते हैं? तो ऑब्वियस आप कहेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना। आपसे पूछा जाए कि थोड़ा और बताइए, कि और एक आध नाम बताइए, तो आप कहेंगे कि मोहम्मद अलामा इकबाल। इकबाल की चिट्ठियां हैं जिन्ना को, कि जिन्ना इसमें रिफ्यूज करते हुए लिखते हैं, लेकिन इकबाल उनको परसू करते हैं कि देश में खतरा है, अलग स्टेट चाहिए, अलग नेशन चाहिए। चिट्ठियां हैं, प्रकाशित हैं। लेकिन सच बात यह है कि दोनों इकबाल और जिन्ना, जब 1933 में पाकिस्तान डिक्लेरेशन आया, लिखा गया, जब पहली बार पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ, तो दोनों उसके विरोध में थे। पाकिस्तान डिक्लेरेशन लिखा 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 22-23 साल का एक पढ़ने वाला लड़का, उसका नाम था रहमत अली चौधरी। रहमत अली चौधरी जब पाकिस्तान डिक्लेरेशन लिखते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इस आइडिया को, और वही 10 साल बाद वो आइडिया जिन लोगों ने रिजेक्ट किया वही लोग उसको बाई करते हैं, वही लोग उसको ओन करते हैं, और भारत उस आइडिया पे बढ़ जाता है, दो देश हो जाते हैं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि ये कैम्ब्रिज का आइडिया था लॉन्ग बिफोर 1947। रहमत अली चौधरी भी विलेन नहीं था, उसे कांधे पर रख के बंदूक चलाई गई थी। अभी आपने बांग्लादेश में देखा, एक देश में सरकार खत्म हो गई सिर्फ प्रोपेगेंडा से, कुछ नहीं किया गया। 50,000 लोग सड़क पर आए और मास डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किया गया। ये सरकार जो चुनी हुई सरकार नहीं, ये डिक्टेटर है। और सेम फॉर्मूला उस समय भारत में भी अप्लाई किया गया। ये जो चुनी हुई सरकार नहीं, डिक्टेटर है। और मोबिलाइजेशन कैपेसिटी यहां भी बनाने की प्रयास किए गए, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग शहरों को चोक करने का प्रयास किया गया, अलग अलग मूवमेंट्स को लेकर। भारत में हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम बच गए, बांग्लादेश कमजोर था तो सरकार पलट गई। ये सब उन थिंक टैंक से आइडियाज आते हैं जहां दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड काम करते हैं, हाईएस्ट सैलरीज पेड की जाती हैं, और भारत उसका विक्टिम आज से नहीं है, मैं मानता हूं कि पिछले 200 सालों से। आप देखेंगे कि 1857 के बाद अंग्रेजों को पहली बार लगा कि वो भारत को समझ नहीं पाए, और भारत को जब समझने का प्रयास किया उन लोगों ने, तो उन्होंने 3 काम शुरू किए। एक, गजेटियर्स बनाया, और गजेटियर आप पढ़ेंगे तो ऑनलाइन अवेलेबल है। गजेटियर्स में कास्ट के बारे में लिखा हुआ है, सोनीपत जिला है, वहां पे फला जो टाइटल है वो जाटों का है, जाट जो है आलसी जाति है, क्रोधी जाति है। सारी जातियों के मानस के बारे में, किसी के बारे में लिखा कि बहादुर है, किसी के बारे में लिखा कि मार्शल है, किसी के बारे में लिखा कि लोभी है, किसी के बारे में लिखा आलसी है। लिंग्विस्टिक सर्वे शुरू किया गया, फॉर्मलाइज ढूंढे गए, भाषा में विवाद कहां पैदा हो सकता है। तीसरा, कास्ट सेंसस किया गया। ये तीनों आप देखेंगे तो 1857 के बाद शुरू होता है, 75-80 तक मैच्योर होता है, और पहले जो पब्लिकेशंस हैं लिंग्विस्टिक सर्वे, गजेटियर और कास्ट सेंसस के, उस समय से आने शुरू होते हैं। और उसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत को मैप करने का प्रयास किया। उसी तरीके से दुनिया में भी भारत को मैप करने का प्रयास किया जाता है, भारत के फॉल्ट लाइन्स खोजे जाते हैं। तो दोनों प्रयास होना चाहिए कि हम भारतीय हैं तो हम भी भारत को समझें,
इसकी डाइवर्सिटी को समझे, इसकी स्ट्रेंथ को समझे, इसके वीकनेसेस को समझे, और हमारा कंट्रीब्यूशन इन फॉल्ट लाइन्स को कम करने में या खत्म करने में कितना हो सकता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हमारा देश हित में यही है। उसी तरीके से दुनिया के ऐसे देश जो चाहते हैं कि हम युद्धरत रहें, वो ये ढूंढने में लगते हैं कि फॉल्ट लाइन्स कैसे बढ़े, कैसे फर्दर हो। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं अपनी बातों में कि ये जो आइडियोलॉजीज हैं दुनिया में, अभी वोकिज्म आया, पहले कोई दूसरा इज्म आया, पहले कोई ह्यूमनिज्म आया, अलग अलग इज्म्स जो आते हैं, तो इसलिए आपको प्रभावित करते हैं क्योंकि इनके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, इनके पक्ष में प्रमाण बहुत रहते हैं। तो आप स्कॉलर्स हैं, आप यूनिवर्सिटी एरियाज में, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं, आप प्रमाणित का मतलब और तर्कों का मतलब आप जानते हैं। मैं अगर ये कहूं आपको कि सत्य वो नहीं है जिसके पक्ष में ज्यादा प्रमाण हो या ज्यादा तर्क हो, आप सत्य पहले ढूंढते हैं फिर प्रमाण ढूंढते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप भारत में जन्म लिए, आप भारत से प्रेम करते हैं, तो आपके हिस्से का सत्य क्या है? कश्मीर के मामले में अगर देखें तो आप कहेंगे पीओके, तो वही आप पाकिस्तान में पैदा होते तो आपके हिस्से का सत्य क्या होता है? आप इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहते हैं कि दो जीवों में प्रतिस्पर्धा करा लीजिए, एक मच्छर में और एक शेर में, और मैं ये कहूं कि मच्छर ताकतवर है और आप कहें कि शेर ताकतवर है, तो मैं कहता हूं कि भाई आप बड़े फ्यूडल माइंडसेट के आदमी हैं, आप बहुत सामंती विचार के व्यक्ति हैं, मच्छर हैव नॉट है, कमजोर है, तो उसको बिना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए ही आप कमजोर कैसे साबित कर देते? तो तय हुआ कि चलो प्रतिस्पर्धा हो जाए, तो कोई एक स्कोर बोर्ड पर खड़ा हो गया और दो पक्ष हो गए कि दोनों के पक्ष में प्रमाण दिए जाए कि ताकत किसके पास ज्यादा है। तो आपने कहा कि शेर के पंजे में इतना ताकत होता है, मच्छर में नहीं होता है, तो 1 पॉइंट शेर के जिम में, 0 मच्छर के जिम में। शेर की दहाड़ इतने डेसिबल की होती है, मच्छर की नहीं होती है, तो 2 पॉइंट शेर के जिम में, मच्छर के जिम में 0। मैंने तब मच्छर को पक्ष देना शुरू किया, मैंने कहा कि मच्छर उड़ सकता है, उड़ने को ताकत माने क्या, तो 2:1 हो गया। मच्छर शेर की नींद आराम कर सकता है, 2:2 हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि एकता में शक्ति है, मच्छर 1 लाख आपको एक साथ मिलेंगे, शेर नहीं मिलेंगे, 3:1 हो गया। लास्ट में इस तर्क की बहस में मच्छर जो है वो जीत जाता है, और वाकई जीत जाता है। आपको लगे कि मजाक सा है, लेकिन सारे जो तर्क दिए गए इज्म के नाम पे जीतते हैं, उसी तरीके का मजाकिया और वाहियात है। सारे तर्कों के बावजूद इस सबको कुछ नहीं ढूंढ सकता कि मच्छर मच्छर है, शेर शेर है, शेर ताकतवर है, मच्छर नहीं है। लेकिन आपको तर्कों में कुछ उलझा करके प्रामाणिकता प्रमाण दीजिए कि गाय माता है, परिवार संस्था साइंटिफिक है, जो राष्ट्रवाद है हिंसक नहीं है, आपको उलझा करके आपका मानस बदलने का प्रयास किया जाता है। ये जो फॉर्मेट है बहस का कि तर्कों के आधार पर सत्य को प्रमाणित करना, हम सब लोग बनारस के आसपास हैं, इसलिए उस शब्द का प्रचलन हम लोग अपने आम जीवन में करते हैं, थेथोलॉजी कहते हैं। और थेथोलॉजी जो है ये भोजपुरी का शब्द है, थेथर प्लस लॉजी, अंग्रेजी उसमें मिक्स किया, लेकिन भोजपुरी का कंसेप्ट शब्द है, लेकिन ये कंसेप्ट अमेरिकन है, ये कंसेप्ट वेस्टर्न है कि किसी चीज को जबरदस्ती तर्क के आधार पर प्रमाणित कर देना। ये कंसेप्ट उसी तरीके से अमेरिकन है जैसे थेथर का पौधा अमेरिकन है। आपको मालूम है थेथर का पौधा अमेरिकन है? इसका बोटानिकल नेम इकोमिया कॉर्निया है और ये नॉर्थ अमेरिकन पौधा है। ये जो कंसेप्ट है थेथोलॉजी का उतना ही वेस्टर्न है
ये तथ्य का पौधा अमेरिकन है वेस्टर्न। कुल मिला जुला के बाद अब समापन की ओर है। दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते हैं वो भारत मानस के अनुरूप है। समाज नीति, राजनीति, गवर्नेंस, वह वेस्टर्न हैंगओवर से मुक्त है और दुनिया की जो अच्छी चीजें हैं उससे भी युक्त है। वो उसको डिनाई नहीं करता है, इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस है, लेकिन अपने को ही नहीं मानता है। कुल मिला जुला करके बात यह है कि 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है, उसमें सबका पार्टिसिपेशन है। विद्यार्थी के नाते आपका है, देश के नागरिक के नाते किसी का है, सरकार के नाते सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन तय किया है कि हम डेवलपिंग नेशन का ठप्पा हटाएंगे, अपने को इलीगल कंट्री या दुनिया का जो सबसे अग्रणी देश है उसमें हम अपने आप को खड़ा करेंगे। इसको खड़ा करने में जो ये स्लोगन है इंडिया 2047 भारत 2047, ये स्लोगन केवल राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों का नहीं है। सेम स्लोगन वैसे लोगों का भी है जो भारत को विखंडित देखना चाहते हैं, रक्तरंजित देखना चाहते हैं, सिविल वॉर में देखना चाहते हैं। उसका एक उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पटना में 3 साल पहले 2021 में एक रेड मारा गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में उसको टेररिस्ट आउटफिट केंद्र सरकार ने घोषित किया। जब उसे डॉक्यूमेंट मिला तो उसमें एक उनका विजन डॉक्यूमेंट था इंडिया 2047, और इंडिया जो 2047 विजन डॉक्यूमेंट था उसमें भारत को विकसित देश नहीं बनाना था, भारत को तबाह बर्बाद करना था, भारत को रक्तरंजित करना था, भारत को डिसमेंबर करना था, भारत को डेमोनाइज करना था, भारत को कमजोर करना था, भारत को सिविल वॉर में झोंकना था। उसमें कैसे फॉल्ट लाइंस को फर्दर करें, भाषा की, जाति की, धर्म की, उसके लिए पूरा एक्शन प्लान। नाम क्या था? वही नाम जो पीछे लिखा हुआ है, इंडिया 2047। तो इंडिया 2047 का लक्ष्य लेकर के 2 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, एक जो देश से प्रेम करते हैं और एक जो देश के खिलाफ है, और ऐसे दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, अलग अलग साधनों के साथ उनका सामना तो करेंगे ही, लेकिन उसमें जो आत्मबोध है, भारत की चिट्ठी है, जो भारत का रस है, जो भारत की ओरिजिनलिटी है, उसकी जो परंपरा है, उसके जो संस्कार हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष जाने देना, उसको हीन नहीं मानते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही कुल मिला जुला करके मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अगर दीनदयाल जी को आपको समझना हो तो उनका एकात्म मानव दर्शन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय रामाशीष जी से कि सर आप भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द हैं। हमारे तो अनुज जी हैं, डॉक्टर विनय सिंह जी, बहुत ही उत्कृष्ट पद्धति से उन्होंने विचार रखे हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा एकात्मानव दर्शन के पृष्ठभूमि के विषय में आपके सामने रखूं, क्योंकि जिस समय एकात्मानव दर्शन पर दीनदयाल जी ने अपने विचार रखे, देश स्वतंत्र हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, देश के सामने एक अपनी आंतरिक समस्या थी, और उसमें दुनिया के लोगों की भी स्थिति ऐसी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्से में बटी थी। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था। रूस तो मित्र राष्ट्र के लिए अमेरिका के साथ था द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन रूस से साम्यवादी विचारधारा का संपोषण करने के कारण अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इनकी मित्र सूची से बाहर निकल गया। युद्ध में तो साथ था,
वैचारिक दृष्टि से इनका संबंध टूटा और पूरी दुनिया दो भाग में बंटने लगी। अमेरिका नाम की संस्था एक स्थापित हुई और अमेरिका विजयी धमक के साथ फ्रांस इंग्लैंड में खड़े हुए। लोकतंत्र समाजवाद, ये लोकतंत्र और ये जो पूंजीवाद है, दोनों के साथ ये सब खड़े हुए। छोटे छोटे देशों में नॉर्वे होगा, स्विट्जरलैंड होगा, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, ये पूंजीवाद के साथ खड़े हुए। और 5-10 देश इधर रूस के साथ खड़े हो गए। कोई चेकोस्लोवाकिया होगा, और सारे देश हम जानते हैं जो कम्युनिस्ट रातों रात बिल्कुल ओवरनाइट चेंजेस आई, सब कम्युनिस्ट बन गए लोग। ये परिस्थिति दुनिया की थी। और भारत के अंदर फिदेल कास्ट्रो जैसा व्यक्ति, उधर ये जो वहाँ की थी नॉर्थ कोरिया की एक लड़ी, नाम उसका भूल रहा हूँ मैं, उधर माओ थे, मार्क्स थे, स्टालिन थे। और उधर से स्टालिन ने तो घोषणा किया था कि जो कम्युनिज्म है ये चलेगा यहाँ क्रेमलिन से, पहुंचेगा बीजिंग, कलकत्ता होते हुए लंदन पहुंचेगा। एक बहुत बड़ा दर्दीला घोषणा, एक अहंकार युक्त घोषणा, टू ब्रिंग द एंटायर वर्ल्ड अंडर द कैनोपी ऑफ मार्क्स। ये इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाएंगे और रास्ता उसका एक बनेगा, भौगोलिक। हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग कम्युनिज्म साम्यवाद का स्वागत करने के लिए पलक पौड़े विषय वो प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके दो कारण थे। पहली बात तो है कि लोकतंत्र के उतना परिपक्व नहीं था इस देश के अंदर लोकतंत्र। उसके नॉर्म्स क्या है, उसके मैक्सिम्स क्या है, कैसे उसको हम इस देश के अंदर और आगे ले जाएं और परिपक्व करें। इस देश के नेताओं का लोकतंत्र का उतना कोई अनुभव था नहीं। तो एक ये कारण था। दूसरा ये कारण था कि विश्व के अंदर साम्यवाद ने, कम्युनिस्टों ने करीब 10 करोड़ लोगों की हत्या की थी, उनकी क्रूरता को, उनके अहंकार को, और अपने ही अंदर एक ऐसे विषाणु को छुपाए रखे जो मानवता को नष्ट करके लिए अपने अस्तित्व को स्थापित करता है। इस सत्य को इस देश के लोग जानते नहीं थे। तो मार्क्स की घोषणा, लेनिन की घोषणा, सर्वहारा की चर्चा, गरीबों की चर्चा, और इसके आधार पर लोगों ने सोचा कि ये जब हमारे देश के अंदर आएगा तो रातों रात इस देश की जो गरीबी की, भूखा की, अकिंचनता की समस्या है वो एकदम समाप्त हो जाने वाली है। और इसके कारण सब लोग स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ऐसी स्थिति थी। और कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा मानते थे कि नहीं, इस देश के अंदर पूंजीवाद ही आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की समृद्धि, अब आप समझिए कि 1893 में शिकागो के अंदर केवल उसकी समृद्धि देख करके विवेकानंद जैसा व्यक्ति चकाचौंध में आ सकता है, तो भारत के लोगों की स्थिति कैसे होगी? जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है वो तो समझता था कि बस अमेरिका की जो चमक दमक है वो भारतवर्ष के अंदर आना चाहिए, उससे हमको पूंजीवाद में, धन से हमको सुख प्राप्त होगा, हमको बिल्कुल साम्यवाद से सुख प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति उस समय थी भारतवर्ष के अंदर। और अच्छा हुआ तो भारतवर्ष में पूरा आप देखेंगे कालखंड तो 25 से 60 तक लोग साम्यवादी जीत करके लोकसभा में जाने लगे, विधानसभा में जाने लगे। तो ऐसा लगता था कि पूरे देश के अंदर भी एक रेडिकल चेंज आने वाली है। उस समय दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने सोचा कि इतना प्राचीन देश है हमारा, राष्ट्र कोई आज का राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, 300-400 वर्षों का इतिहास, और 10-20 देशों को आक्रांत करके जबरदस्ती अपने में मिला लेने वाले ये पश्चिम के देश, सब बिल्कुल एमालगमेशन है। रूस के साथ वो ऐसी स्थिति, भारत 14 खंडों में बिखर गया। आज अमेरिका की जो स्थिति बनी हुई है वो भी दुनिया के लोगों को अपने पर शासन किया, कितना मैक्सिको का राज्य हड़प करके अपने को स्थापित करके रखा हुआ है। तो उनको बिल्कुल भारतवर्ष के अंदर हमारा जो देश इतना पुरातन देश है, हमारा राष्ट्र इतना पुरातन राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर हमारी विचारधारा, हम कैसे केवल पेंडुलम की तरह एक राष्ट्र बनता है, या तो एक पेंडुलम पर एक छोर पर जाए तो पूंजीवाद, दूसरे छोर पर जाए तो साम्यवाद। हमारे देश की विचारधारा क्या होनी चाहिए? ये इतने वर्षों तक जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, उसको स्टालिन चलाते थे, उसको मार्क्स चलाते थे, उनको कोई बिल्कुल कोई एडम स्मिथ चलाते थे। कौन चलाता था? किस पर हमारा अर्थशास्त्री कौन था जो इस देश के अंदर इसको चलाता था?
तो हमको अपने देश के अंदर विचार करना चाहिए कि अपने देश के अंदर कौन सा विचार जो इस देश को चला सके। तो भारत का विचार तो भारत के दर्शन में ही मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानववाद कहते हैं, ये तो दुनिया के अंदर मार्क्सिज्म था, दुनिया के अंदर ये कैपिटलिज्म था, सोशलिज्म था, ये सारे शब्द आ गए थे। अब दुनिया को समझाना था, इसलिए उन्होंने ईस्ट शब्द रखा। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि कोई आइडियालिज्म, आइडिया जब रहती है तो वैश्विक रहती है, लेकिन आइडिया जैसे ही ईस्म बनती है तो एक फ्रेम में आ जाती है, उसका अस्तित्व छोटा हो जाता है। आइडिया तो वैश्विक होती है, हमारी कोई आइडिया है पूरा विश्व उसको ले सकता है, लेकिन जैसे ही हमारी आइडिया विश्व में बदल जाती है तो फिर बिल्कुल छोटा होता है, उसका अर्थ ही समाप्त हो जाता है, उसकी अर्थवत्ता हो जाती है। तब आज लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हम ईस्म नहीं कहेंगे, इसको दर्शन कहेंगे, और दर्शन कहते ही बात बदल जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर भी कोई शासन आता है इस विचार के आधार पर, भारतीय विचार के आधार पर, तो उस शासन को लागू करने वाला व्यक्ति कैसा होगा। तो ये जो भाषण इनके हुए थे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्ग में हुआ था। पहला भाषण का जयपुर के अंदर हुआ था, पूना में हुआ, मुंबई में हुआ, जैसे इन्होंने जिक्र किया। तो वहाँ व्यक्ति निर्माण करने वाली एक संस्था, जहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, प्रशिक्षण चल रहा था, उनका वहाँ भाषण वहाँ हुआ। तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर हमको इस दर्शन को लागू करने वाला, चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो व्यक्ति कैसा चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी शासन, कोई भी पद्धति व्यक्ति आधारित है, बिना व्यक्ति के तो चल नहीं पाएगी। तो व्यक्ति कैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो ह्यूमन होगा वह इंटीग्रल चाहिए, जो मानव है वह इंटीग्रल चाहिए। सिद्धांत बहुत ज्यादा इंटीग्रल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत को लागू करने वाला मनुष्य इंटीग्रल है कि नहीं। मनुष्य का शरीर मांगता कुछ है, मन चाहता कुछ है, बुद्धि कहती कुछ और है, आत्मा कुछ और है। तो इन चारों में सामंजस्य जिसके अंदर हो, जिसको उन्होंने कहा कि परफेक्ट मैन चाहिए, एकम्प्लिश्ड मैन चाहिए किसी सिद्धांत को लागू करने के लिए, जिसका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों एक दिशा में चले, अलग अलग न रहे। ऐसा इंटीग्रल ह्यूमन चाहिए जो उस समाज को संचालित कर सके। और इसलिए तब उन्होंने कहा कि अपने देश के अंदर 4 पुरुषार्थ के आधार पर संपूर्ण समाज की व्यवस्था चलती है। तो उसमें धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। हमारे यहाँ ईशावास्य ये ईशा उपनिषद में तो पहले अर्थ ही आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अर्थ नहीं, इसको धर्म के साथ जोड़ो, क्योंकि भारतवर्ष धार्मिक देश रहने के कारण, क्योंकि धर्म से इस देश का कर्तव्य निर्धारित होता रहा है, धर्म ही कर्तव्य बन गया इस देश का। तो कानून से किसी देश को चलाना है बहुत श्रेष्ठकर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि धर्म आधारित अर्थ की व्यवस्था, और इसलिए जहाँ पर, क्योंकि देखिए अर्थ तो दोनों तरफ है, साम्यवादियों ने भी अर्थ को महत्व दिया है, पूंजीवाद ने भी अर्थ को महत्व दिया है, बस केवल मालिक बदल गया है, मलकियत बदल गई है। साम्यवाद के अंदर राज्य मालिक होगा, पूंजीवाद में अर्थ तो है, धन तो है, उसका मालिक व्यक्ति रहेगा। भारतवर्ष के अंदर न तो राज्य मालिक धन का है, न तो व्यक्ति मालिक धन का है, और इसीलिए हमारे देश के अंदर कहा कि सब है भूमि गोपाल की। यह धरती किसी की नहीं हुई, धरती कहू न भाई। और आज पश्चिम का प्रभाव कितना हमारे देश के ऊपर हो गया है कि हम जब बैठते हैं तो किसी को कहते हैं कि तो धनपति है, ये तो लक्ष्मीपति है। हमारे देश के अंदर लक्ष्मी को विष्णु प्रिया कहा गया है, वो विष्णु की पत्नी है। और हमारे यहाँ धन के अंदर 2 रूप माने जाते हैं। एक तो बिल्कुल भौतिक रूप है, जो चल संपत्ति है, ये हमारी जमीन है, मकान है, घर है, द्वार है, ये भी हमारी चल, ये अचल संपत्ति है। और एक श्री है, और हम बिल्कुल श्री को, लक्ष्मी को हम उनके पति बन रहे हैं, राम राम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर ये जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है कि इस देश के अंदर संपत्ति के हम रक्षक हैं, संपत्ति के हम मालिक नहीं हैं, ये दृष्टि भारत की रही है। और दूसरी बात ये कि यहाँ उद्यम लालसा, भोग से कहीं भी उसको हम समन नहीं कर सकते। उसका ये मनुष्य के बिल्कुल यज्ञ की अग्नि में जितनी संविधा डालते हैं उतना ही वो उतनी प्रज्वलित होती है
एक इच्छा का समन, दूसरी इच्छा का जनन, ये होता रहता है। और इसलिए तब कहा कि भाई मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, और नियंत्रण रखे तो जितनी आवश्यकता उतनी प्राप्त करे, तो धर्माधारित। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर आज हम जब कभी चर्चा करते हैं, कोई व्यापार कर रहा है, तो हम सब चर्चा, एक आम बात हो गई है कि कितना नेट प्रॉफिट तुमको प्राप्त हुआ। इस प्रॉफिट में पहले ही नेट है, जाल है। हमारे देश के अंदर कहा, कोई भी आप जाएंगे, अभी दीपावली आएगी, कोई पूजा पाठ होता है, तो हमारे यहाँ व्यवसायी के बिल्कुल दरवाजे पर लिखा रहता है, दुकान पर शुभ लाभ लिखा रहता है। लाभ को नेट लाभ नहीं बताना, वो तो नेट लाभ तो जाल में फंसा करके किसी तरह से फायदा उठाना। तो ऐसी इकोनॉमी इस देश के अंदर स्थापित करना है। इस तरह से हम अपने देश को संचालित करेंगे क्या? तब उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का जो अर्थशास्त्री है वो कोई माल्थस नहीं है, एडम स्मिथ नहीं है, कोई मार्शल नहीं है। भारतवर्ष का जो अर्थशास्त्री है वो इस देश का कबीर है। वो कहता है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। किसी देश को हम कितना विकसित कर लें। आज तो हम विकसित देशों में अमेरिका को मानते हैं, इतनी पागलपन है वहां पर। दुनिया में सबसे ज्यादा लुनाइटिक एजाइलम वहां पर है। हम विकसित भारत बनाने का मतलब क्या कि हम अमेरिका बनाएंगे क्या? भारत तो सोने की चिड़िया था। सारी दुनिया के जो आए आक्रमणकारी, एक बार हमारे ऊपर के अपने सिद्धांत और विचार लेकर के नहीं आए। हमको तो लूटने के लिए, हमारे धन को ही लूट करके ले जाने के लिए आए। और कितना लूट करके ले गए। भारतवर्ष की 1947 में स्वतंत्रता के पहले ये अंग्रेजों ने बहुत मजबूरन छोड़ा, और ये भी मान लिया था कब नींबू में कोई रस नहीं हमने छोड़ा, इतना लूट लिया है धन इसका। तो उन्होंने धन ही लूटने के लिए यहाँ पर शासन किया था, व्यापारी बनकर के आए थे। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि भारतवर्ष के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और 4 पुरुषार्थ का, ये 4 पुरुषार्थ हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो कहा कि ये 3 पुरुषार्थ जो बड़े महत्व के हैं। ये जो धन है मनुष्य के अंदर नहीं है। हम समाज की रचना करते समय आय धन न करें। धनी हम हों, लेकिन धन हमारे जीवन का अभिष्ट न हो। धन साध्य बन जाता है तो असाध्य रोग बन जाता है। और इसलिए कि धन को किस तरह से अपने जीवन के अंदर उपयोग करना। धन रखो, लेकिन धन दान देने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, तुम्हारे उपभोग के लिए नहीं है। और इसलिए तब कहा कि धन हमेशा धर्माधारित होना चाहिए। एन केन प्रकार नहीं। अभी यही का लड़का हिंदी में पीएचडी के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसका हुआ नहीं। IIM में उसका एडमिशन हुआ, अब वहां पर गया तो छोड़ करके भाग करके आया। यहाँ पर हिंदी में एडमिशन लिया काशी हिंदी विश्वविद्यालय में। मैंने पूछा कि तुमने क्यों छोड़ा IIM? उसने कहा कि पहला ही पाठ पढ़ाया गया था कि एन केन प्रकार किसी कंपनी में तुम्हारी नौकरी लगेगी तो सामने वाले की जेब काट करके अपनी कंपनी को भरना है। यानी पहले ही पाठ में बेईमानी सिखाना। भारत के अंदर ऐसा नहीं बताया जाता। एक उदाहरण बताता हूँ। बजरंग जी गुप्ता इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर एक उदाहरण बताते हैं। अभी इन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था तेज प्रताप सिंह ने, उसमें उन्होंने उदाहरण बताया था कि जब मैं बचपन में पढ़ता था तो उसमें 2-4 पैसे मिलते थे लोगों को, क्योंकि आज उनकी उम्र 80 साल की हो गई। 4 पैसे, 5 पैसे, 1 आना, 2 आना में ही सारा खर्च चलता था, पॉकेट खर्च। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्होंने बताया कि एक बार उदाहरण हुआ ऐसा कि मैंने पिताजी की जेब से 5 रुपए निकाले। पिताजी थे नहीं मांग सकूं, तो जेब से 5 रुपए निकाला और चला गया वहां। तो हमारे स्कूल के सामने ठेला वाला था, पहुंचा, वो चनाचूर बेचता था। तो मैं लेकर के उसके पास गया और 5 रुपए दिया, कहा कि मुझे दो खाने के लिए। उसने मुझे चनाचूर दिया नहीं, वो पैसा लिया, मेरा हाथ पकड़ा और मेरे घर पहुंच गया। उसने कहा कि कोई भी इतने बच्चे को आज तक 5 रुपए नहीं देता और यह लड़का बिगड़ जाएगा, 5 रुपए आपकी जेब से लेकर के आया है, तो इसको आप समझाइए। उस समय का जमाना ऐसा था। आज कोई 5 रुपए का सामान ले करके जाए, कोई दुकानदार यदि 5000 का ये पैसा लेकर के कोई भी दुकानदार के पास जाए, वो पिता के पास आएगा क्या दुकानदार? ये परिस्थिति बदल गई पूरे भारतवर्ष के अंदर, दृष्टि बदल गई भारतवर्ष के अंदर। तो ये दृष्टि बदलनी चाहिए, मनुष्य बदलना चाहिए। सिद्धांत दुनिया के अंदर जो चलाता है वो मनुष्य रहता है। इसलिए धन के प्रति तुम्हारी दृष्टि क्या है, ये इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि धन है ये बिल्कुल बाहर है। ये जो धन है ये बाहर है, अर्थ पुरुषार्थ बिल्कुल बाहर है। अब यहाँ बैठे हुए हैं,
तेज में बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं, तेज में बहुत बढ़िया मंगी घड़ी पड़ी हुई है, वो घड़ी निकल जाएगी तो इनके लिए हाय हाय नहीं करेगी तो मैंने आप ही कराई छोड़ दो, पहचानती तक नहीं है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि जो अर्थ पुरुषार्थ है मनुष्य के बाहर है, इस शरीर के बाहर है, और जो काम पुरुषार्थ है तो वो काम पुरुषार्थ थोड़ा अंतर है, वो थोड़ा भीतर है, आंतरिक है। तो काम पुरुषार्थ तो हमारे यहाँ साहित्य है, कला है, ये आर्किटेक्चर है, गीत है, गायन है, संगीत है, ये सारी चीजें काम पुरुषार्थ के अंदर आती हैं, वो थोड़ा भीतर है। तो काम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए मनुष्य क्या चाहिए? तो धन चाहिए। तो ये धन चाहता है काम पुरुषार्थ को एक उसको भोगने के लिए, ताकि थोड़ा अंतर है। और जो धर्म है तो धर्म कहाँ निवास करता है? तो उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य की बुद्धि में निवास करता है। तो हमारे देश का शास्त्र कहता है कि जो बुद्धि है ये विवेक युक्त होनी चाहिए, और विवेक के साथ वैराग्य जब तक नहीं रहेगा तो बुद्धि प्रज्ञा युक्त नहीं मानी जाती। तो बुद्धि विवेकवान, और विवेकवान बुद्धि के साथ वैरागी दृष्टि होनी चाहिए। भारत के अंदर ये दृष्टि वैरागी थी। आप जब समझ लीजिए कि याज्ञवल्क्य जब जंगल जाने लगे, संन्यास बन गए, तो मैत्री और गार्गी एक को तो पूरा धन दे देते हैं, और मैत्री उसे गार्गी कहती हैं कि वो कौन सा धन है, सारा धन तो बांट दिया हम लोगों के बीच में, और कौन सा धन है जिसको प्राप्त करने के लिए आप जंगल जा रहे हैं, मुझे वो धन चाहिए। यानी भारतवर्ष के अंदर जो ज्ञान परंपरा रही है ये भौतिक धन की तरफ आकर्षित नहीं होती, तो वो धन चाहिए जिसको इस देश के अंदर पुरुषार्थ में मोक्ष कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का जो मोक्ष उद्देश्य है वो अंतिम उद्देश्य है। तो मोक्ष क्या है? तो मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है, और ये स्वरूप है एकात्म मानव दर्शन। आज किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, IAS ऑफिसर होगा, शिक्षा विभाग में चले जाइए, और शिक्षा विभाग जाइए तो जब तक आप कोई वेट नहीं फाइल पर रखेंगे वो आगे बढ़ेगी नहीं। ये एकात्म दृष्टि नहीं है। वो यदि एकात्म दृष्टि रहती तो सोचता कि यूनिवर्सिटी का लड़का है, इसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई, हमारे पास आया अपने काम के लिए, ये हमारे बेटे के रूप में है, स्वरूप में है, तो बेटे का काम तो घूस लेके नहीं करता, तो हम इसका काम बिना घूस लिए करें। यदि ऐसा करता है तो दृष्टि एकात्म है, यानी अब वो समाज के साथ एकात्म हो रहा है। तो एकात्म मानव दर्शन को समाज के साथ एकात्म हो करके, समाज के साथ हार्मनी क्रिएट करके, समाज के साथ इंटीग्रल हो करके ही लागू किया जा सकता है। इस बात को हमको जानना चाहिए कि भाई हमको एकात्म मानव चाहिए, एकात्म दर्शन को लागू करने के लिए, व्यवस्था को संपादित करने के लिए एकात्म मनुष्य चाहिए जो संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता महसूस करे। और इसलिए हमारे देश के अंदर तो उन्होंने कहा कि 4 आश्रमों में, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गार्हस्थ्य आश्रम है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। आज दुनिया के साम्यवादी घोषणा करते हैं कि मैं कम्युनिस्ट बन जाता हूँ तो मैं सिटीजन ऑफ वर्ल्ड हो जाता हूँ। हमारे देश के अंदर जैसे व्यक्ति सन्यासी बनता है वो सिटीजन ऑफ यूनिवर्स, सिटीजन ऑफ वर्ल्ड नहीं बनता, वो सिटीजन ऑफ कॉस्मोस हो जाता है, वो ब्रह्मांड का नागरिक बन जाता है, संपूर्ण चीजों से पार चला जाता है। मार्क्स कहते हैं कि सारी दुनिया एक है, वैश्विक दुनिया की कल्पना इस्लाम भी करता है, मार्क्सिज्म भी करता है और ईसाईयत भी करती है। हमारे यहाँ जिसको इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि हमने तो पैदा होते ही संपूर्ण दुनिया को विश्व माना, लेकिन दुनिया को पैदा होते ही इतनी दृष्टि मिल गई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप चले जाइए, पश्चिम का दर्शन ये व्यक्ति अलग है, परिवार अलग है, समाज अलग है, सृष्टि अलग है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, सबके सब डिस्टिंक्ट हैं। और हमारे यहाँ स्पाइरल बाइंडिंग की तरह समाज है। व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, परिवार गांव से जुड़ा हुआ है, गांव समाज से जुड़ा हुआ है, समाज राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तब राष्ट्र दुनिया से जुड़ता है। एक ही बार हम दुनिया में पहुंच करके नहीं चलेंगे। अपनी माँ को माँ न कहें और सड़क पर किसी स्त्री को माता जी कह करके उनकी पूजा करें तो ये तो हिपोक्रेसी है। पर अपने से आइडेंटिफाइड होना, बच्चा जब पैदा होता है तो 6 महीने तक अपनी माता से आइडेंटिफाइड होता है, उसके बाद पिता से आइडेंटिफाइड होता है, फिर परिवार से होता है, फिर गांव से होता है, फिर समाज से, जनपद से होता है। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन बढ़ती है, ये वृद्धि होती है। यानी व्यक्ति का विस्तार पूरा ब्रह्मांड है। ये एकात्म मानव दर्शन है। और इस एकात्म मानव दर्शन को लागू करने के लिए और जिस तरह से दुनिया का एक एकेडमिक भाषा में प्रस्तुति विनय जी ने कहा है, एक अद्भुत दृष्टि से उन्होंने किया है, हमको सबको ये सब करना चाहिए।
उन्होंने ओकिज्म की बात की, भारतीय संस्कृति की बात दीनदयाल जी कहते हैं। ओकिज्म माने ऐसा लगता है कि कोई इंटीरियर ह्यूमनिज्म की तरह, ये कैपिटलिज्म की तरह, मार्क्सिज्म की तरह कोई विचारधारा है, और कोई विचारधारा नहीं। ओकिज्म का मतलब ही है, क्योंकि दुनिया के अंदर उनको लगा कि हम भारत को तो विशेष तौर से वो लोग टारगेट करते हैं, इस देश को हम जीत नहीं सकते अपने मार्क्सिज्म के आधार पर, हम इस देश को नहीं जीत सकते हैं बिल्कुल साम्यवाद के आधार पर। तो ओकिज्म एक आया और उनका एकमात्र सिद्धांत यही है कि हम लोग संस्कृति पढ़ाते नहीं हैं, संस्कृति का विध्वंस करते हैं। माता और पुत्र में, स्त्री और नारी का संबंध ढूंढने वाला यह विचार कोई संस्कृति और कोई इस्म है क्या? इस खतरा को हमको समझना चाहिए, इस पे जानना चाहिए कि इस तरह से दुनिया के अंदर एक पर्यावरण उसका कैसे बर्बाद किया जाए। दुनिया की संस्कृति को नष्ट करने का काम ओकिज्म कर रहा है। वो तो अपने नष्ट लोग हैं। कहीं कोई परिवार नाम का मोदी ने, मैं अमेरिका गया था, वहां पर एक घर में ठहरा था, यहीं का लड़का पढ़ता था, वहां पर ये एक पेटेंट लॉ की प्रैक्टिस करता है, एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट है, अमानंद, उसकी पत्नी मेधा। मुझसे कही भैया मेरे घर के सामने 85 साल की बुढ़िया है, 2 बेटियां हैं, उसका बेटा है, मल्टी मिलियनर है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। 2 साल पहले तो सब अपनी माँ से मिलने आते थे, 85 ईयर्स ओल्ड थी, कोई अब मिलने के लिए नहीं आता है। तो भारतीय पर्व और त्योहारों पर हमारे यहाँ भोजन बनता है, तो मैं उसके घर में, क्योंकि बीच में केवल सड़क ही है, उसके घर में लेकर के जाती हूँ भोजन कराने के लिए, तो बड़ी प्रसन्न होती है। अमेरिका में दरवाजे खुलते नहीं है, बंद ही रहते हैं हमेशा। उस दिन उसका, जिस दिन भारतीय पर्व त्योहार होगा, उस दिन उसका दरवाजा खुला रहता है और भारतीय त्योहारों का कैलेंडर वहां पर टंगा हुआ है कि आज मेधा जरूर लेकर के भोजन आएगी। यानी मेधा ने तो उससे अपना एकात्म स्थापित कर लिया है, उसके बेटी और बेटे उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये जो एकात्मता है कि पूरी सृष्टि हमारा ही हिस्सा है, हम पूरी सृष्टि को ईश्वर से आच्छादित कर दें। हम मानते हैं कि सिया राम में सब जग जानी करें करो प्रणाम जोर जुपानी, ये तुलसीदास जब कर यहाँ बैठकर 80 पर कहते हैं, और यहाँ पर हम लोगों की जगह पर तुलसीदास को ला के बैठाए होते तेज प्रताप सिंह, तो आप में और हम में वो सियाराम देखते कि नहीं देखते? फिर हम लोग उनके अंदर सियाराम देखते कि नहीं देखते? ये एकात्मता है, ये एकात्मा समाज के अंदर आनी चाहिए, और इसके लिए अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए कि आज जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये संघर्ष, ये झगड़े, ये द्वंद्व, ये विद्वेष, मनुष्य के मन के अंदर कलमश, उस आत्मबोध को प्राप्त नहीं करने के कारण ये होते हैं समाज के अंदर। ये कलमश दूर होना चाहिए। तो केवल आत्मबोध ही नहीं आए तो उसके कारण राष्ट्रबोध भी जागृत हो, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि 47 तक हमको कैसे विकसित करना है। 47 तक उनकी तरह इस देश को बनाना है, इस देश को ध्वस्त करना है, विध्वंस करना है, डिसमेंटल करना है इस देश की संस्कृति को, इस देश की संस्कृति का अधिष्ठान पर इस राष्ट्र को हाइट पर ले जाना है, वैभव पर ले जाना है, वो करना है। चिंतन आपका है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर जाते हुए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के समन्वयक एवं संस्थापक प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने सुविचार साझा करें एवं हमारे आज के अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद रंजना। कभी कभी उत्साह में गलतियाँ हो जाती हैं, मैं संस्थापक कहीं भी आता है। इस विद्यालय के संस्थापक भावना है और इस शहर की स्थापना दीनदयाल जी के सभी वर्षगांठ जनशती मनाई जा रही थी 2017 में। भारत सरकार ने बहाल कर विशेषकर संस्कृत मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से, क्योंकि 5 करोड़ रुपया जो फंड है संस्कृत मंत्रालय नहीं दिया है, तो उससे इसकी स्थापना हुई। तो किसी को स्टे दिया सकता है इस शेयर की स्थापना के लिए, तो मेरा कहना प्रधानमंत्री मोदी को दिया सकता है, क्योंकि उन्हीं की योजना थी कि देश में दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए
शोधपीठों की स्थापना हो, और उस कड़ी में जो पहला शोधपीठ स्थापित हुआ पूरे भारतवर्ष में वो यही हुआ, यही। और दूसरी और भी एक अच्छी बात है कि किसी को भी कॉर्पस फंड किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला है। BSU is the only university in this country जिसको कि 5 करोड़ कॉर्पस फंड भारत सरकार के एक विभाग के अंतरिक्ष मंत्रालय ने दिया। तो आपको क्या कहना ही है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। दो कार्य मुझे करने हैं, काम रिपोर्टियर का करना है, दोनों वक्ताओं के बोलने के बाद संक्षेप में 2 मिनट, और फिर उसके बाद आप सभी का धन्यवाद करें। जैसा आप सबको विदित है कि दीनदयाल उपाध्याय 60 वर्ष पूर्व मुंबई में उनका व्याख्यान हुआ था, जिससे कि एक आत्म मानववाद की जो दर्शन है उसका हुई। तो 60 वर्ष हम उसका मनाया जाता है। और देश में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी शोधपीठ हैं, जो भी लोग दीनदयाल जी से जुड़े हुए हैं, हर जगह ये 60 वर्ष मनाया जा रहा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने शोधपीठ के तरफ से एक गिलहरी प्रयास कह सकते हैं। हम भी जो है विभिन्न वक्ताओं को आग्रह करके यहाँ उनके 60वें जो 60वीं हीरक जयंती है, उनके मानववाद के, उस पर हम व्याख्यान कराएंगे। और विनय जी को सुनने के बाद लगा कि दीनदयाल जी के विचारों से प्रारंभ करके और ये समसामयिक परिवेश में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इससे अच्छे व्याख्यान की मैंने कल्पना नहीं की। बहुत ही सुंदर। He started from the basic philosophy of पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हम सभी परिचित हैं, क्योंकि शोधपीठ से जुड़े हुए हैं अच्छा। लेकिन उनका लेटर पार्ट बहुत अच्छा था, जो समसामयिक सांगिक बनाते हुए कहाँ उसकी मतलब उपयोगिता है। तो इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं विनय जी के लिए। कुछ बातें उन्होंने की, जैसे चीटी की बात की, जिसके लिए उन्होंने बेहतर शब्द दिया, क्योंकि चीटी दीनदयाल जी के विचार का केंद्र में है। और दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को पढ़ने वाले छात्र शुरू में चीटी से बहुत प्रभावित हैं। तो चीटी के लिए जो आपने आत्मबोध शब्द दिया, शायद बहुत ही सही है। हर चीज की अपनी चीटी है, एसेंस है, और भारत की भी एक भारतीयता है, एसेंस है। एंड कोई भी चीज अपनी चीटी से जानी जाती है। इंडिया इज ऑल्सो नोन बिकॉज ऑफ इज चीटी, दैट इज द एसेंस ऑफ इंडिया। आत्मबोध तो उसके जोड़ के केंद्र में है। दीनदयाल जी किसी बात की बात नहीं करते, वो ऐसी दूसरी बात है जो बात की बात नहीं करते, उनको भी बात करवा दिया जाता है। उनके एकात्म चिंतन को एकात्म मानववाद की संज्ञा दे ही दी गई। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा की तो उन्हीं की पूजा होने लगी। कबीर दास ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया तो कबीर की मूर्ति बना के उनकी पूजा होने लगी। तो दीनदयाल जी ने बाद उनका खुद चिंतन कहते हैं कि मैं समाजवाद का विरोध करता हूँ, साम्यवाद का विरोध करता हूँ, पूंजीवाद का विरोध करता हूँ। ये सभी बात हमारे जो भारतीय परिवेश है, जो भारतीय विचारधारा, उससे कहीं कोई मेल नहीं। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आफ्टर रिजेक्टिंग कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, उन्होंने जो इंडियन अपना जो वे मतलब एक अपनी अलग फिलॉसफी की बात की, तो एक आत्म मानव चिंतन था, जिसको हम विकास मानववाद के रूप में आचार्य कर रहे हैं। बात जोड़ दिया गया, लेकिन दीनदयाल जी बाद शब्द के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज हम उसको एक आत्म मानववाद ही कहते हैं। वो किसी की काफ़ी चर्चा हुई, दिनेश जी ने बात की, आजकल बहुत सबसे चर्चा है। वो मतलब जगना, जगी हुई, जैसे लगता है कि जो वोकिज्म की बात करते हैं वही जगे हुए, से सब सोए हुए। तो all those people who are professing this philosophy of Wokism, they treat themselves कि वही मतलब सजग हैं, जागरूक हैं, जगे हुए हैं, और शेष को जो है मतलब मिसगाइडेड हैं या गलत रास्ते पे यहाँ सो रहे हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी है, अमेरिका में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आजकल, और वोकिज्म जो है एक नेगेटिव फिलॉसफी को, नकारात्मकता का जो है एक नया
जैसे कि विनय जी ने बताया कि 1947 का 2 विजन है, एक भारत को तोड़ने का है, एक भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाने का। बहुत दिन से ऐसा क्या चला भी आज का दिन। देश जब आज़ाद हुआ था तो एक पाश्चात्य विचारक थे सेलिगस हैरिसन, और सेलिगस हैरिसन ने भारत के बारे में बहुत उनके नकारात्मक विचार थे। उनका मानना था कि भारत तो एक रहने से रहा, इतनी ज़्यादा विविधता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको एक सूत्र में बांध के रख सके। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डिसइंटीग्रेशन है, वो इमिनेंट है, अनअवॉइडेबल होने। एक तरफ ये बोल रही है, उन्होंने 50 के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अपनी लिखा था, उनकी भाषा भी नहीं थी क्या होगा आगे चल करके। और पाकिस्तान के बारे में उनके विचार थे कि पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक यूनिफाइंग फैक्टर है जो भारत में कोई यूनिफाइंग फैक्टर, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर भारत में था ही नहीं। वो कुछ नहीं दिखाई दिया, साध्यता उनको नहीं दिखाई दी। जो हमारा जो दीनदयाल जिस स्थिति की बात करते वो स्थिति वो देख नहीं पाए, देख भी नहीं सकते थे। जो हमारा इंडियननेस था, भारतीयता था, वो नहीं देख पाए। उनको पाकिस्तान में एक दिखाई दिया कि देयर इज एटलीस्ट वन फैक्टर दैट विल कीप पाकिस्तान यूनाइटेड, एंड दैट फैक्टर इज इस्लाम। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बना, और इस्लाम जो है पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में रखते हैं। सेलिगस हैरिसन की बात 10-15 साल में गलत साबित हो गई। भारत का विखंडन नहीं हुआ, भारत का बाल्कनाइजेशन नहीं हुआ, विखंडन हुआ तो पाकिस्तान को, जिसको मानते थे कि एक सूत्र कम से कम है धर्म इस्लाम, जो इसको ये करके रखेगा पाकिस्तान, 77 में ही विखंडित हो गया। तो काफी लोगों ने, उनको भारतीय दृष्टि के बारे में पता नहीं। हमने कभी भारत जो वेस्टफैलियन नेशन स्टेट है उसमें हमने कोई बात ही नहीं की। हम तो कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो टेरिटोरियल स्टेट तो सेकेंडरी हो, वेस्टफैलियन सेंस में कौटिल्य के वो 16 महाजनपद की बात मिलती है। 16 महाजनपद क्या थे? ये 16 टेरिटोरियल स्टेट थे, वेस्टफैलियन स्टेट थे। लेकिन इन 16 जो महाजनपद थे उनका एक राष्ट्र था भारतवर्ष, आर्यवर्त, कई नाम दिए गए। तो आर्यवर्त जो है उसमें 16 जनपद भी समाहित थे, भारतवर्ष में 16 जनपद समाहित थे। तो हम उस सेंस में बात करते हैं, और जब उस सेंस में बात करेंगे तो फिर जो है हमारा जो अखंड भारत की परिकल्पना है, उतना तो जाने की जरूरत नहीं है। सोशल कैपिटल की आपने बात की, बहुत ही अच्छे विचार थे। इनका कोई सोशल कैपिटल नहीं, खाली मटेरियल वहाँ पे है। और अमेरिकन क्या है, कोई फिलॉसफी भी नहीं है। वो तो खुद ही मतलब दूसरे सेटलर्स हैं। आज वो बात कर रहे हैं कि भाई इंडियंस को चैन में बांध के भेजें, सभी देशों के साथ और वो कहते हैं इमिग्रेंट्स के लिए। अरे क्या है, अमेरिका में एवरीबॉडी हैज गॉट हाइफेनेटेड आइडेंटिटी, देयर इज नो ट्रू अमेरिकन, एंड इफ देयर इज एनी ट्रू अमेरिकन दे आर रेडिएंट्स, द इंडिजिनस अमेरिकन पीपल जो वहाँ के हैं, गॉड नेटिव तो वो हैं। ट्रम्प की फिलॉसफी नेटिविज्म की है, तो वो कौन नेटिव हैं? ट्रम्प खुद ही यूरोप से किसी देश से आए हुए। ट्रम्प कहाँ के देश का है, किसी देश से यूरोप से पोलैंड है, तो पोलिश आइडेंटिटी उसकी है। एवरीबॉडी हैज गॉट हाइफेनेटेड आइडेंटिटी। तो उसमें जो है, अब ये आप गूगल करेंगे मैनिफेस्ट डेस्टिनी में, दे हैव मैसेकर्ड द लोकल पीपल, द इंडिजिनस पीपल। इसलिए चाइना भी कभी कभी इसको ह्यूमन राइट की बात अमेरिका करता है, तो चाइना भी सोचता है कि अपनी गृहवास में आके देखो, जितनी हत्याएं तुमने की उसका तो 10% भी हमने तिब्बत में, जिनजियांग में या कहीं नहीं किया। तुमने तो पूरी रेस को ही खत्म कर दिया। तो इंडिजिनस पीपल अमेरिका के रेडिएशन को समाप्ति कर दिया, और फिर कह दिया कि उसका जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन कि वो उनकी डेस्टिनी यही थी, उनको मर जाना ही था, नष्ट होना था, तो यूरोपियंस को आना था। वो कॉलोनाइजेशन का मतलब ये किस तरह से मतलब जस्टिफिकेशन है। और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, विनय जी ने हम फिर से अनुरोध करेंगे, विनय जी का काफ़ी काम है नक्सलिज्म पे, माओवादी पे, उस पर उसका मदद से बुलाएंगे कि
थोड़ी सी रेफरेंस मतलब उसका जो उन्होंने बात की कि 9th कांग्रेस हुई माओइस्ट की, जिसपे भी ढेर सारे मेन दो ढेर सारे माओइस्ट ग्रुप थे। जो डोमिनेंट पार्टी थी MCC इन बिहार, वहाँ थे, और PWG आंध्रा के, वो सब यूनाइट होकर के CPI माओइस्ट बनते हैं। और उन्होंने 2004 में यूनाइट होते हैं तो बहुत तेजी से इनका स्प्रेड होता है। और ये स्थिति आ रहती है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं तो माओवादी को बोलते हैं दिस इज सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल। वो सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट था। बाकी हमारे गृहमंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 31 मार्च 2026 के बाद कोई भी माओवादी नक्सली देश में नहीं रहे। तो वहाँ से ढेर सारा जो है हुआ है। दिस माओवादी इज रिट्रीट एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा नहीं है। तो चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे नेपाल हो, ये जहाँ भी हो, they have embraced parliamentary democracy, no way out। बोल्वेरियन रेवोल्यूशन के रूप में आया वहाँ। बोल्वेरियन रेवोल्यूशन क्या है? तो यूगोस्लाविया, जिसको कम्युनिस्ट लोग अपना मानते हैं, यूगोस्लाविया कोई रेवोल्यूशन से नहीं आया, he came to power through election only। तो पूरा बोल्वेरियन रेवोल्यूशन थ्रू मतलब वो इलेक्शन से ही आया, जो भी हो, चाहे लूला हो, चाहे यूगोस्लाविया हो, या डिफरेंट जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है। तो कब दिस कम्युनिज्म इज ऑन रिट्रीट एवरीवेयर, दे हैव रियलाइज्ड दिस थिंग, द हेलोनेस ऑफ दिस फिलॉसफी, द वीकनेस ऑफ दिस फिलॉसफी। और जितने भी देश हैं, आज कोई देश नहीं, चीन से बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री थोड़ी मुश्किल हुई। यदि कैपिटलिज्म अपने ट्रू फॉर्म में कहीं है तो वो चीन में, नो लॉन्गर ए कम्युनिस्ट कंट्री। तो तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगली बार आएँ और समय दें और इस पे आपका व्याख्यान करें। आपकी पुस्तकें भी हैं काफ़ी, भाई साहब तो सब यहाँ जानते हैं, सब सुन चुके हैं। कोई भी ऐसा इस हाल में बैठा नहीं होगा तो भाई साहब सुनना चाहता हूँ या भाई साहब को सुनना चाहता हूँ। हम लोग सुन के ही उनको काफ़ी कुछ सीखे हैं। जिस पर भारतीयता की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा अपना है, क्या भूमंडलीकरण वैश्वीकरण तो बहुत बात किया है, वसुधैव कुटुंबकम की आज की फिलॉसफी है। और हम जो है पूरे विश्व की चिंता, दूसरी क्या करेगा, हमसे ज़्यादा विश्व की चिंता कौन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कब से ये आया है, सर्वे सन्तु निरामया, ये इतनी ब्रॉडर फिलॉसफी, ये वेलफेयर स्टेट की फिलॉसफी तो बहुत बाद में है। हमारी फिलॉसफी में जितने भी चाहे वेलफेयर स्टेट के एलिमेंट्स जो कुछ भी हो या ग्लोबलाइजेशन का जो भी हो, ये हमारे चिंतन में कब से आया है, जिसकी बात तो भाई साहब क्या भारत अपनी उसके लिए कई बार भाई साहब हमारी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति जो कि अमेरिका बहुत जाते रहते हैं, भाई साहब इसलिए अमेरिका की बात अक्सर हो करते हैं, क्योंकि ही मतलब ही हैज बीन देयर, सीन बोथ द कल्चर, लिव्ड बोथ द कल्चर। तो यह एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हिस्ट्री सब कुछ है, क्योंकि हम लोग कम ही गए हैं। मैं अमेरिका गया तो 10 ही दिन में लौट आया, ऐसा 2-3 महीने वहाँ रहे, तो 10 दिन में क्या समझ पाएंगे पूरे समाज के बारे में। तो काफ़ी जो हमारी संस्कृति की जो सेंस है सब कुछ है, इसके बारे में पता चला। हम दोनों अपने वक्ताओं के प्रति माननीय रामश्री जी भाई साहब और हमारे विशिष्ट अतिथि विनय कुमार जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये आभार मैं केवल अपने तरफ से नहीं प्रकट कर रहा हूँ, मैं अपनी पीठ की तरफ से प्रकट कर रहा हूँ, मैं अपने सामाजिक विज्ञान संकाय की तरफ से कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आप दोनों हमारे सभी आयु में तो सभी हमसे छोटे ही हैं। मेरे अनुरोध पे और ज़्यादा कहूँगा आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेस्पेक्ट आए भी हैं। मैं शुरू करूँगा आयु के हिसाब से ही। पहले लोग हैं मालवीय जी पहले आते हैं, तो प्रोफेसर हेमंत कुमार मालवीय जी हमारे राजनीति शास्त्र विभाग के वरिष्ठ अध्यापक। सबसे ज़्यादा डायनेमिक इस विश्वविद्यालय में कोई टीचर है तो डॉक्टर बाला लखेंद्र जी।
nobody can match his dynamism. You go anywhere, you will find Bala Lakshmi. बाहर के लोग भी हमसे पूछते रहते हैं, बाला लक्ष्मी जी को, और ऐसे जो लोग पूछते हैं कहाँ मिल गए बाला लक्ष्मी? Most visible person, very dynamic, you will find him everywhere. So thank you Bala Lakshmi जी for coming here. शान ठाकुर जी, ये पीस स्टडीज के हमारे शिक्षक हैं. डॉक्टर सुप्रिया शाह जी, आप संगीत विभाग से हैं, एंड शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द सितार. आप यूट्यूब पे इनके सितार को देंगे, सितार का बहुत ढेर सारा पंडित रविशंकर की परंपरा की है. हाँ, पंडित रविशंकर की परंपरा. शी इज वेल नोन नेम हियर इन माय यूनिवर्सिटी. शी इज फ्रॉम सितार, और आप कभी यूट्यूब पे करेंगे तो ढेर सारे बन जाएंगे. शी प्लेज ब्यूटीफुली. So thank you madam, thank you so much for coming. I know you have been very busy with many meetings etc. मीनाक्षी झा जी चली गई, कुछ उससे कर रहा होगा. वाणी मिश्रा जी हमारे एयर की भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों मेरे खड़े वरिष्ठतम हैं, और हमारे मित्र प्रोफेसर केशव मिश्रा जी भी भी हैं. तो वाणी जी हृदय से धन्यवाद. आप कितने व्यस्त समय में आप आगे आई हैं. विद्यार्थियों में मैं सबका नाम नहीं लूँगा. श्याम जी, प्रशांत जी, जो प्रशांत जी हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं. अब डायमंड जी का नाम नहीं लूँगा, हमारे चेयर के तो नाराज जाएंगे, क्योंकि भी प्रांतीय कार्यकारिणी के हैं सदस्य हैं. शेष चेयर के विद्यार्थियों का नाम नहीं लूँगा. शुभम है, सब विद्यार्थी हैं. विद्वांसु हैं. हमारे चेयर के वरिष्ठ हैं प्रमोद गुप्ता जी, जो हमारे चेयर में दो लोग हमारे काम कर रहे हैं. एक पीडीएफ में है, एक रिसर्च ऑफिसर हैं, तो रिसर्च ऑफिसर प्रमोद गुप्ता जी हैं, और उमेश जी हैं जो हमारे चेयर के पीडीएफ कर रहे हैं. हमको दिव्यांशु, रंजना, कृष्णमोहन, सभी का मतलब तो सभी को, आप लोगों को विशेष, क्योंकि आप लोग नहीं आते हैं तो वक्ता भी बोलना नहीं चाहते. मेरा सबसे बड़ी चुनौती जो है सबको बुलाना. आप इतनी पीछे बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे. अरे आपको आगे आना चाहिए था. सुचरिता नंदा जी, आप प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस, जेएनयू के स्टूडेंट हैं. आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पीछे विद्यार्थियों में बैठे थे, इसलिए उधर इधर नहीं जा पाए. तो सभी विद्यार्थियों का आई विल नॉट बी टेकिंग द नेम, सभी विद्यार्थियों को यहाँ आने के लिए हृदय से आभार. और आप लोगों के लिए दो सूचना थी. एक 7 तारीख को आ रहे हैं जेएनयू के फॉर्मर रेक्टर हैं चिंतामणि महापात्रा, वो आ रहे हैं. उनके साथ हैं ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक साथी चारी जी हैं, और एक प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं अमेरिकन स्टडीज. ये तीनों लोग आ रहे हैं. 7 तारीख को उनका व्याख्यान है, तो वो हमारा पहले से कार्यक्रम सूचना फिर सबको जाएगी. आप सभी से अनुरोध उसमें आए. और एक अगला और कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ 22, 23, 24 उसकी सूचना जाएगी. हम एक योग पे का वर्कशॉप कर रहे हैं, योग और वेलनेस पे जो है वर्कशॉप कर रहे हैं. वर्कशॉप की पहल जो है मध्य प्रदेश कैडर की सीनियर IPS ऑफिसर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. सो पर्सनली शी विल बी कमिंग ओवर हियर एंड शी विल बी सुपरवाइजिंग द वर्कशॉप फॉर 3 days. तो वो उसका बैकग्राउंड ये है कि वो पुलिस वालों को ही नहीं करती थी. मैंने कहा पुलिस से आप संगीत करिए, विद्यार्थियों को में भी आइए, और वही जो आप पुलिस वर्कशॉप करते हैं योगा एंड वेलनेस का, विद्यार्थियों जो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा जरूरी है. एक सारी समस्याएँ हैं जिनका निराकरण योग और वेलनेस हो सकता है. तो उनका 3 दिन का वर्कशॉप है. आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी इच्छुक हों उस हमसे मिल लेंगे, करा लेंगे, क्योंकि उसमें वर्कशॉप की केवल 30 ही सीट है, 30 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि योग सिखाएंगे और सब कुछ है, मेडिटेशन सिखाएंगे, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अलाउ नहीं करेंगे. तो ये चेयर से 2 प्रोग्राम निर्धारित हैं. 7 तारीख को लेक्चर का, 22, 23, 24 को योग और वेलनेस का एक वर्कशॉप है. दोनों कार्यक्रम
सभी से अनुरोध है, अपेक्षा भी है कि आप लोगों को कार्यक्रम कभी इसी तरह सब। बहुत बहुत धन्यवाद।